Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying about countable and uncountable nouns and of course number. So let's just begin with this. देखिए countable क्या है जिसका जो noun number में one में आता है means that we can count. उन्हीं को हम बोलते हैं countable और जिनको हम नहीं count कर पाते हैं uncountable बोलते हैं. So let's just begin with this very easy and very familiar to your day-to-day life. So let's just begin with. So it's countable nouns and uncountable nouns and of course their number. देखिए countable क्या है जिनको आप count कर सकते हैं. देखिए what are countable nouns? Countable noun is a noun of a person, place, animals and things that can be counted. बिल्कुल आप noun को अगर आप count कर पा रहे हैं तो that is countable noun. जैसे कि few, देखिए many, a few, few, the few, there are some words that are used with countable nouns. So one thing that you all have to clear in your mind, that what is the difference between this. Before going through this chapter, I would like to explain you this concept, that what is few. Let me write over here. What is few, what is a few, and what is the few. देखिए what is the difference between, देखिए what is the difference between these three. If you are seeing this word few, that means कि वहां पे कुछ भी नहीं है. People used to think, children used to think कि few का मतलब कुछ है. No, few means totally empty. Like if I am saying you there are few students in the class, means class में कोई भी नहीं है. And if I am saying that there are a few students in the class, it means two or 3 to 5 students are in there in numbers. But if I'm saying you that there are the few students present in the class, that means the whole class is present. So this is a very minute difference between all these three: few, a few and the few. इसी तरीके से little, a little, little, a little and the little. Little means कुछ भी नहीं है. If I'm saying that there is little sugar in my house, that means मेरे घर में चीनी नहीं है. If I'm saying that there is a little sugar in my house, that means कि मेरे जो भी डब्बा है, जिस भी कंटेनर में हम शुगर रख रहे हैं, उसमें थोड़ी सी शुगर है. And if I'm saying that there is the little sugar in my container, then it means my container is full of sugar. Please just write down this difference in your notebook, because this is very, very, very important to know that what is the difference between few, a few and the few, because it usually comes in exam. एंड इसी का ही आप जब बड़े क्लासेस में आ जाएंगे, यू कैन सी इसी के अंदर ही एरर्स आते हैं. राइट. तो लेट्स जस्ट बिगिन. तो फ्यू विद दिस काउंटेबल नाउन. अब जैसे कि देखिए, चेयर्स रिमेन एम्प्टी ऑन द स्टेज ड्यूरिंग अ प्रोग्राम. एक प्रोग्राम में चेयर्स क्या थी, एकदम खाली थी, नोबडी वाज सिटिंग. ही इशू अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी. उसने एक किताब को इशू किया है, अ बुक. राइट, दिस इज अ बुक. अ डाइट ऑफ एग्स एंड अ मिल्क. डेली मिल्क इज वेरी गुड फॉर दिस हेल्दी बॉडी के लिए. एग्स एंड मिल्क लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज बोथ आर दी सोर्स ऑफ प्रोटीन. वी ऑल नो एग्स आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, whereas the yellow part in this eggs is basically fruitful in vitamin D, which is very beneficial for your bones and it helps in the growth of your bones. Whereas milk, we all know it's a dairy product and it is rich in protein, calcium. आप लोग को आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ही दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. And in this weather, it is very fruitful that if you will take all these two things daily. Right. His brother bought 2 cars from the showroom. Showroom से उसके भाई 2 cars लेकर आया, 2 आ गया. That is countable में. Right. This chairs, books, eggs and cars, all these are countable. आप इनको count कर सकते हैं. Right. काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. काउंटेबल नाउन और जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो यूजुअली काउंटेबल नाउन्स यूज. राइट. मेक श्योर दिस दैट यू जस्ट एम्फसाइज ऑन दीज कि काउंटेबल नाउन्स प्लूरल भी होंगे, सिंगुलर भी होंगे, और जो कॉमन नाउन्स होंगे वो काउंटेबल ही होंगे. राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल. अब अनकाउंटेबल वो है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते. It is a type of a noun which cannot be counted, जिसको आप count नहीं कर सकते हैं. जैसे कि a lot of, little, etc. ये कुछ words हैं. These are those words that are used with this uncountable noun. Right. Uncountable nouns हमेशा singular होते हैं. जैसे कि listening to the music will make you feel relaxed. कि आप music, अब आप म्यूजिक को काउंट नहीं कर सकते हैं. राइट. कि आपने कितना म्यूजिक सुना. नो. राइट. Add more sugar to a cup of tea. अब add more sugar, that more
It can be 2 spoons, it can be more than 2 spoons, it can be 5 spoons, it can be like half teaspoon. So it is not counted. That is why it's written. और sugar डाल दीजिए थोड़ा सा. He was late because of the bad weather. वेदर की वजह से वो क्या हो गया, लेट हो गया. देखिए एक वेदर ये होता है और एक वेदर ये होता है. इस वेदर का मतलब है कि वेदर यू आर गोइंग और नॉट, वेदर आई एम गोइंग टू अ पार्टी और नॉट, एंड दिस वेदर इज मौसम, राइट. नाउ दिस म्यूजिक, शुगर, वेदर, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. यू कैन नॉट काउंट देम. समटाइम्स कुछ नाउन होते हैं जो कि काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं. जैसे कि इफ वी स्टडी अबाउट दिस फूड, अगर हम फूड के बारे में बात करें, आई हैड चिकन फॉर अ डिनर, मैंने चिकन खाया है. अगर हम काइंड ऑफ एनिमल की बात करें यहाँ पे, तो दे कीप चिकन्स इन दी बैकयार्ड. वो चिकन्स को बैकयार्ड में रखते हैं. देखिए अब इसी चिकन को मैंने बोल दिया कि मैंने आज डिनर में मुर्गी खाई है, और हम ये बोले कि हाँ बैकयार्ड में मुर्गियां रखते हैं, देन दैट मुर्गी विल बी काउंटेबल, वेयर एज दिस चिकन कैन नॉट बी काउंटेबल. ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे कि हमने एक लेग पीस या 2 लेग पीस या 1 किलो चिकन खाया. 1 किलो चिकन कोई भी कंज्यूम नहीं कर सकता, राइट. सिमिलरली हेयर इन जनरल, हेयर्स हमारे बाल, राइट. शी हैड थिक ब्राउन हेयर. आप ब्राउन हेयर्स को बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते. ब्राउन क्या, किसी भी हेयर को. ही हैड अ फ्यू ग्रे हेयर्स ऑन हिज टेम्पल्स. उसके टेम्पल के ऊपर कुछ ग्रे हेयर्स हैं, राइट. नाउ स्पेस के लिए, इज देयर इज इनफ स्पेस, रूम फॉर मी, क्या मेरे लिए कुछ स्पेस है ओवर हियर, दिस रूम के. ये बेसिकली ये वो चीजें हैं, ये स्पेस के लिए हम कभी कभी रूम भी वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट. और यहाँ पे ये हेयर्स, यहाँ पे एनिमल्स दर्शा रहे हैं, इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स है हेयर के, राइट. और अगर हम यहाँ देखिए प्लेस के, दे हैड टू सिट इन द वेटिंग रूम फॉर एन आवर. वेटिंग रूम में उनको 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा. अब देखिए ये क्या है, ये वोवल यहाँ पे है, इसलिए एन आया हुआ, एंड दिस एच इज साइलेंट, दैट वी विल बी स्टडिंग इन आर्टिकल्स, राइट. देन ड्रिंक में, आई लाइक टी बेटर देन कॉफी. मेरे को टी पसंद है कॉफी से ज्यादा. देखिए क्या है ये बेटर देन, दिस इज एन कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. और नंबर ऑफ ड्रिंक्स में 2 स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफीज, मेरे को 2 स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी चाहिए प्लीज. So that was all about countable and uncountable. I hope you all understood. So we have just completed about countable nouns and uncountable nouns. अब उसको हम further part पढ़ रहे हैं. That is noun numbers, singular और plural. हम noun numbers के बारे में पढ़ेंगे, singular और plural के बारे में. ठीक है. देखिए 2 numbers होते हैं noun में. First is singular and the next one is plural. Singular और plural. Singular means जो कि एक represent करता है एक entity को, whereas plural is more than one entity. अब सिंगुलर में देखिए, व्हेन वी स्पीक अबाउट वन पर्सन, सिर्फ एक पर्सन के बारे में, एक प्लेस के बारे में, एक थिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, वी विल बी सेइंग इट सिंगुलर नाउन, राइट. वी विल बी सेइंग इट एज सिंगुलर नाउन, राइट. फॉर एग्जांपल्स व्हिच इज रिलेटेड टू पर्सन. पर्सन में क्या है, सिंगर है, चेयर डांसर है, आर्टिस्ट है, और यू कैन से ड्राइवर है, एक्सेट्रा. रिलेटेड टू प्लेस, अगर हम जगह के बारे में बात करेंगे, इट विल बी लाइक बैंक, एयरपोर्ट, school, temple, city, town, districts. Related to thing, if it will be like chairs, mobile, carpet, dictionary, etc. Dictionary में a आता है यहाँ. Make sure आप e ना लिखिए. Most of the students they used to do this mistake while writing dictionary. It's not e r y, it's a r y. Then it's related to animal में it's dog, cat, camel, lion, leopard, etc. Whatever you want to write. Whereas in plural noun, when we speak more than one person, जब हम एक से ज़्यादा person, place, animal and thing की बात करेंगे, that will be plural. For example, related to person, it's singers, dancers, artists, drivers, etc. Moving on to the place, it's banks, airport, cities, states, towns, districts, whatever. Related to thing, it's chairs, mobile, pencils, pens, furnitures. Not actually furnitures, it's dictionaries, etc. देखिए अब यहाँ पे भी a आया हुआ, right. Related to animals, it's dog, cat, camels, elephants, etc. Right. Now what are the rules of forming from plural? हम plural बनाएंगे कहाँ से, singular से. जैसे कि देखिए by adding s to the singular nouns, normal s लगाएंगे हम singulars में, जैसे book का books, cup का cups, tree का trees, ear का ears, hand का hands, and fruit का fruits, right. Now by adding es to the nouns that are ending with a hissing sound, जैसे कि s, ss, ch, ss, sh and xx, इनके आगे हम क्या लगाएंगे, es लगाएंगे. जैसे बस के साथ buses हो गया, right, because its last word is ch, x,
इन सबके आगे चर्चेस, बॉक्सेस, राइट। सिमिलरली फॉर दिस, ग्लास का ग्लासेस, वॉच का वॉचेस एंड फॉक्स का फॉक्सेस, राइट। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू ऐड ईएस जिनके लास्ट में क्या आ रहा हो, ओ आ रहा हो, विच इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। मतलब ओ वॉवल से पहले आप एक कॉन्सोनेंट है, आप वॉवल नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट है। मैंगो, मैंगोज, तो हम क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। मस्किटो, इट्स मस्किटोज, मच्छर होते हैं, टोमेटो, टमाटोज, पोटैटो का पोटैटो, कार्गो का कार्गोज, एंड ऑफ कोर्स हीरो का हीरोज। बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि डायनमो का डायनमोज ही रहता है, ईएस नहीं लगेगा। फोटो का फोटोज होता है, whereas पियानो का पियानोज होता है, और रेशो का रेशोज होता है। These are some exceptions that you all have to keep in mind. But अब ऐसा नहीं है कि हम इसको रटेंगे बैठ के कि हाँ रेशो का रेशोज, डायनमो का डायनमोज, फोटो का फोटोज, ईएस नहीं लगाना। But if you will have a good habit of reading each day, na, you will definitely see these words coming in the newspapers, coming in your books कि रेशियो में कभी भी ईएस नहीं लगता है। तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, अगर एरर में आ गया कि आप रेशियो को बताइए कैसे पूरा बनाएंगे, तो इफ यू आर इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट इनफ देन यू विल डेफिनेटली रिमेम्बर कि हमें ईएस नहीं लगाना, सीधा एस लगना, right? And this way you can have a quick you can say that you have a quick memory for this exception, right? Now next is if the noun ends with y, अगर y के साथ end करता है और जो कि किससे प्रीसीड हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट से, जैसे कि देखिए y प्रीसीड हो रहा है कॉन्सोनेंट, तो y को हटा के क्या लगा देंगे हम, IES। you have to change y into IES, जैसे कि सिटी का सिटीज, फेरी का फेरीज, राइट। नेक्स्ट इज लेडी का लेडीज, आर्मी का इट्स आर्मीज, एंड कंपनी का कंपनीज, कंपनी का क्या होता है, कंपनीज, वाई को हटा के IES। सिमिलरली इफ द नाउन एंड्स विद वाई, और अगर वो किससे प्रोसीड हो रहा है, वोवल से प्रोसीड हो रहा है, देन वी सिंपली हैव टू ऐड एस, जैसे कि ए, आप देख रहे हैं ये डे का डेज, राइट, की का कीज, मंकी का मंकीज, राइट, रे का रेज, बॉय का बॉयज, एंड डंकी का डंकी। अगर वो कॉन्सोनेंट से होगा तो वाई को हटा के IES, अगर वो वावल से होगा तो सिर्फ एस लगा। इफ द नाउन एंड्स विद एफ एंड FE, अगर नाउन एफ हो रहा है एफ और FE, तो एफ को हटा के हम क्या लगा देंगे, VES। लीव का इट्स लीव्स, थीव का इट्स थीव्स, एंड लोव का इट्स लोव्स, राइट। सिमिलरली लाइफ का इट्स लाइफ्स, भी एफ को हटा के VES। काफ का इट्स काफ्स, इट्स नॉट काल्फ, L is silent over here. Wolf का it's wolves, right? Moving on to the next. कुछ नाउन्स होते हैं जो एंड करते हैं एफ से, उनको सिंपली आपको एस लगाना है, जैसे कि रूफ का रूफ्स, स्कार्फ का स्कार्फ्स, राइट, गल्फ का इट्स गल्फ्स, जिराफ का जिराफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, एंड क्लिफ का क्लिफ्स। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड कुछ नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल बनाते हैं हम, कैसे, बाय चेंजिंग द वॉवल्स ऑफ द सिंगुलर नाउन, वॉवल्स चेंज करते हैं, जैसे कि मैन का मेन, अब देखिए ये मेन प्लूरल में है, बहुत सारे मेन की बात कर रहे हैं मेन, बहुत सारे वुमेन की बात कर रहे हैं ई एन, ऐसी वुमेन के लिए भी यू कैन ऑल्सो ऐड फॉर ओवर हियर वुमेन का वुमेन, राइट, इन योर कॉलम्स दिस ऑल्सो। टूथ का, एक टूथ के बारे में बात कर रहे हैं, एक दांत के बारे में, इट्स टूथ, देन टीथ, बेसिस इट्स बेसिस, देन इट्स फुट का फीट, राइट। नेक्स्ट इज कुछ ऐड REN टू कुछ नाउन्स में हम ऐड करते हैं, जैसे चाइल्ड में चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, हम REN ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे, और यहाँ पे हम EN ऐड कर रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कुछ नाउन्स होते हैं वो सेम रहते हैं सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, जैसे कि शीप का शीप ही रहता है, फिश का फिश रहता है, डियर का डियर ही रहता है, और डजन का डजन, क्योंकि वो अपने आप में ही प्लूरल होते हैं, राइट। सम नाउन्स दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, फॉर एग्जांपल सीनरी, पोइट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फर्नीचर, एडवाइस। देखिए ये सी वाला जो है ना, दिस इज अ नाउन, और जब एस वाला हो जाएगा दैट इज अ वर्ब, राइट। बिजनेस, ब्रेड, इनिंग्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, राइट, एक्सेट्रा, ऑल दीज कम्स इन सिंगुलर ऑलवेज। इनके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, जैसे मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, civics is my favorite subject, economics is my favorite subject, तो is ये जो verb है वो हमेशा सिंगुलर रहेगी इनके साथ, right? Now, so that was all about, let me see, आगे कुछ तो नहीं है, yes, that was all about noun numbers, so it was a further part of this
noun का ही singular plural that we have studied over here, then we have studied in the previous, that is countable, uncountables. Please go through this chapter, learn all the previous concepts, learn about the sentences, the kinds of sentences, the nouns that we have studied, this countable, uncountable, and then comes the number. Please make sure that you will do this and keep revising the previous concept and stay blessed.